सो शकुल भाई, यस, हाँ, प्रेजेंटेशन शेयर कैसे करनी है? मैं शेयर करूंगा, आप करेंगे? आप जो है वो ये शेयर स्क्रीन का बटन आ रहा होगा आपके नीचे, आपको सही नज़र है। आ रहा है? देखिए शेयर स्क्रीन। यस, क्वेश्चन आंसर के साथ ही शेयर स्क्रीन का बटन आ रहा है। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, जस्ट अ मोमेंट। आपको मैंने एक लिंक भेजा था, आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आया है। एक तो मैंने आपको लिंक शेयर किया था, वो नहीं, आपकी एक ईमेल के ऊपर लिंक आया है मुजम्मिल भाई। हम्म। आप उस लिंक के थ्रू अगर ज्वाइन करेंगे ना, तो वो प्रेजेंटर का लिंक है। आपका व्हाट्सएप चल रहा है? आपने मुझे कब भेजा है? लिंडा ने ही आपको भेजा है डायरेक्ट। आईएफए से आपको ईमेल आई, आईएफए से आपको ईमेल आई होगी, जो नहीं, muzammil@gmail वाली। मेरा ख्याल है मैंने उसी को ज्वाइन किया। आपको एक मिनट, आपको ईमेल आई होगी। अभी आई है, थोड़ी देर पहले। एक मिनट, ये आईएफए लिंडा से आपको ईमेल आई होगी, आईएफए नहीं, टीम से। आईएफए टीम, हाँ आईएफए टीम से आई है और उसी को ज्वाइन किया मैंने। उसी को ज्वाइन किया है फिर अब। ज्वाइन कर लूँ? जस्ट हेलो लिंडा। Hello. Yes, actually, Mr. Muzammal Himani, his screen sharing is disabled. Can you check? Okay, yeah. Okay, can you try one more time, please? Yes, Mr. Muzammal, can you please rejoin? Yes, that's fine. Okay, okay. So we have 701. Just a moment. Okay, so the participants are joining. So just wait a minute or two, minute I believe, so that the rest of the participants can join as well. Okay, so let's start this round, please. We shall commence today's session with the recitation of Holy Quran. So let me start. من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था, मगर इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है। कुछ शक नहीं कि सबको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है। أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن कि भाई वापस ले लें, अगर डाटा उड़ाने की बात है ना वापस ले लीजिए। لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो मना करता है, यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है? भला देखो तो, अगर ये राह रास्त पर हो या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा, तो इसका अंजाम क्या होगा? जरा देखो तो, अगर उसने दीन हक को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा, क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? देखो, अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल। तो वो अपने यारानी मजलिस को बुला ले, हम भी दोजख के फरिश्तों को बुलाएंगे। देखो, उसका कहा न मानना और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। So I warmly welcome you all on this glorious session on taxation. Let me share my screen. Okay. So thank you very much everyone for joining us today for a wonderful session. So just a brief introduction, as we have some new participants with us as well. So just as a refresh, what Institute of Financial Accountant UK is. So Institute of Financial Accountant UK, established in 1916, is an internationally recognized professional accountancy membership body. It's a group member of Institute of Public Accountants Australia, and now the AAT Australia as well, having more than 36,000 members and students in more than 80 countries. So we are affiliated with IFAC, International Federation of Accountants. We are the full member. Both IF and IP are the full members of IFAC. And CAPA, Confederation of Asian and Public Accountants, Asian and Pacific Accountants. Then the UK is also a degree awarding body by Ofcode. In Pakistan, as well as the IF in Pakistan is concerned, we have more than 300 members that they are working in public, private and multinational organizations. Normally on quarterly basis, we hold physical CPD sessions in Lahore, Karachi and Islamabad. But now due to pandemic, we're holding these CPD sessions online. This is our second online session. So we are collaborating with local universities and professional bodies in Pakistan, and we are also increasing our engagement with local employers for the benefits of members and the members' placements. So recently we have launched our 3 branches and branch ambassadors in Lahore, Karachi and Islamabad. So
as I mentioned earlier, that the IPA group, the IPA group means IF and AIT Australia. These are the world largest SME focus group. So the objective of the IFA in Pakistan as well is to develop the SME sector and to provide technical knowledge and expertise to scale up the small businesses, and eventually that will add value to the human capital and SMEs in Pakistan. So if you're you're a non-member, and there are certain benefits, membership benefits as well. As I mentioned that we are the full member of IFAC, so enhanced recognition due to the full membership and reputation as well, uh, because these two memberships has the designatory letters that are AFA, Associate Financial Accountant UK, and Member Institute of Public Accountants Australia. So the membership is portable. This means that as we have more than 36,000 members and students in more than 80 countries, so in different countries you can port your membership, you can work over there, and you can practice in UK and Australia. Currently, we are offering two membership, that is IFA UK and IP Australia. As I mentioned earlier, that we are holding local CPDs, peer engagement and networking events, and there is access to top-up degrees as well from different organizations, from different universities, just like B Honors from University of Northampton and MBA from University of Deccan, Australia. So in Pakistan, we have endorsed program provider, that is Lexicon School of Business and Finance. From Lexicon platform, we are providing certified financial modeler, certified financial leader, advanced diploma in accounting and finance, and the fourth one is associate certified Islamic banker. And in coming days, we are also launching diploma in IFRS that will also be awarded by IFA UK. So we have very distinguished and special speaker for our today's session, Mr. Muzammal Himani. He is a chartered accountant and he is advanced diploma in international taxation from UK. This is a brief profile. He has a very long profile, but I have selected some points as well. So Mr. Muzammal Himani is currently heading uh, the direct taxation and transfer pricing function of Mondelez International for Pakistan, UAE, Bahrain, and Bangladesh. He is also director for direct taxation and transfer pricing for International Taxation and Tax Research Center. He is founder and director at Catalyst Academia. This is a leading training organization who is providing training in accountancy, tax, audit, and risk. He also served as a member of the ICAR Committee on Fiscal Laws. So thank you very much, Mr. Muzammal, for your time. Thank you. So this was all from my side. So now I would like to request Mr. Muzammal to please introduce yourself and formally start the session. So you can click on the share screen button so that your presentation has been shared. Okay, this is fine. Can you see my screen? Yes, I can see. All right, so good evening, everyone. This is Muzammal Himani. Today, we are just going to discuss about the significant highlights of the Finance Act 2020, its impact on the industry and the related compliances that has come through this Finance Act. Basically, the objective of our today's session is going to be on refreshing the amendments made by the Finance Act 2020 and the impacts on the relevant industries and economy in general. Furthermore, we are going to discuss about the like how to compute the tax provisions and annual return following these compliances and these amendments that have come through this Finance Act. Above all, the most important part of our today's session will remain on to maintain a level of compliance by abiding the latest tax provisions, obviously to avoid any adverse repercussions. As we all know that if the compliances are not made, then obviously this results into the penalties and default surcharges and other penal actions. So we are just going to start with the key economy facts
Basically, the government has set a tax collection target of around 4.96 trillion rupees. Obviously, which is more than like 27% more than the last time set target of, and in fact achieved target of rupees 3.91 trillion of taxes. Like presently, what government is projecting is regarding the GDP growth of 2.1%. If we take an inflation effect of, let's say, 6.5%, and obviously some additional efforts to collect taxes and to maximize the increase in tax collection, that can be expected is around 10 to 12%. That basically is in a normal scenario. But when you talk about, let's say, based upon the recent achieved target, for example, let's say if we consider this GDP growth of 2.1%, then 4.25 trillion rupees target can only be achieved. Obviously, yeah. जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि which is lower than the like 4.96 trillion rupees is the set target which government has communicated to the basically IMF. And if we calculate these targets with respect to the GDP and inflation effects and other measures, then the target results into 4.25 trillion rupees, obviously, which is like 700 billion less than the targeted collection of amount of taxes, basically. So obviously now we have to just consider the COVID impact as well. Like obviously the government cannot achieve the 2.1% of GDP growth in financial year 21. So obviously this seems to be something that is delusional. And furthermore, the fiscal deficit of, let's say, financial year 2019 was 8.9%. And the expected was like around, like if you talk about the financial year 20, it was expected around 9.4%, like whereas the budgeted one was 7%. So if we are going to consider and project this fiscal deficit over the next financial year, obviously this is going to be more increased one, and we won't be able to achieve the much target in the upcoming budget. And about like 80 to 87% of the federal government's revenue is to be spent on the debt servicing, because we have taken plenty of loans from like IMF and other ADP and other banks, World Bank. So we need to basically achieve our debt target as well. So this is the major problem, because if we are not going to pay the debts, obviously that is the debts are going to be more increased ones. So there is a need to pay the debt too. While if we talk about the tax relief that government has planned in the current Finance Act by the current presented budget in the National Assembly, it's of PKR 45 billion. This is going to be by reducing the duties and abolishing of 9 withholding taxes. So if we take this in general, तो कोई ज़्यादा कोई change जो है वो expected नहीं है, like कोई ज़्यादा अच्छा relief जो है वो we are not expecting in the due to this current Finance Act. Obviously, we also simultaneously we need to consider the position of the government कि भाई उसको भी अपने जो measures हैं, जो current economic scenario उसको consider करते हुए जो IMF का pressures हैं, जो दूसरे जो debt banks हैं उनके जो pressures हैं उसको consider करते हुए, और फिर जिस तरह से जो economy का flow है due to COVID situation, तो उसको consider करते हुए obviously it is not possible for the government to give more tax relief. But yes, the government has also simultaneously planned to impose some non-revenue measures by, obviously, as we have seen recently, petroleum levy के through, ठीक है, State Bank of Pakistan जो है वो different bonds और different जो certificates है वो issue करके वहाँ से अपने profit जो है generate करने का एक वहाँ से एक breathing space create करेगा. But basically, government is also considering to privatize 2 or 3 major industries, major companies. मेजर कॉर्पोरेशन बेसिकली. सो वहां से जो प्राइवेटाइजेशन रिसीट्स आएंगी उसके थ्रू और साथ में जो है वो एक्सपेंसेस को कट करके जो है वो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे अपने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मीट करने की और जो सेट रेवेन्यू टारगेट है उसको मीट करने की जो है वो यहाँ पे ट्राई कर रही है गवर्नमेंट. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एक और गवर्नमेंट को जो है वो एक मेजर जो लिया है बाय एंडिंग द इंपोर्ट स्टेज एग्जेम्पशन. ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स हु आर अटेंडिंग फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज मस्ट बी अवेयर कि यहाँ पे अब जो है वो सेक्शन 148 की जो एग्जेम्पशन है
ठीक है, दैट इज नो मोर अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑल्दो दे हैव गिवन सम बेनिफिट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर स्लाइड्स, लेकिन यह है कि वो कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं लेकिन साइमल्टेनियसली एग्जाम्पशन भी एंड कर दिए। तो एज अ रिजल्ट ये होगा कि फिर आपके पास जो है कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल यहाँ पर नहीं होगी। Okay, so let's go through some of the key income tax highlights because we are very short of time, so we are not going to go in the details, but yes, कुछ industry के जो impacts हैं, कुछ compliances को देखते हुए हम जो है वो चीजों को discuss करेंगे। ठीक है, starting with government has introduced a concept of the integrated enterprise. Now what is an integrated enterprise? ये एक last अगर हम देखें financial year के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर आपके पास एक मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइस का एक कॉन्सेप्ट आया था। तो उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू गवर्नमेंट हैज जस्ट गिवन दिस डेफिनेशन दैट एनी एंटरप्राइज दैट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइस, तो उसके थ्रू जो है वो यहाँ पे ये एक इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज जो है वो कंसिडर होगी। ठीक है, अच्छा, जस्ट लेट्स वेट फॉर अ मिनट बिकॉज अजान इज गोइंग ऑन। All right, so we were discussing about the integrated enterprise concept. तो ये basically जो है वो accountants, medical practitioners, hotels, restaurants, ठीक है, different sector को जो है वो यहाँ पे loop in किया गया था कि भाई आप अपनी जो sales हैं उसको integrated करवाएं ताकि जो है वो जो government के पास actual sales हैं वो आ सके। इसी तरह से एक और जो change आया है वो that pertains to the NPO, non-profit organization. Basically there are two changes of the NPO that has been introduced by this Finance Act. तो एक उसमें चेंज ये है कि यहाँ पे पहले ही होता था कि भाई आपके पास डेवलपमेंट, ठीक है, देयर वर सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट फॉर द एनपीओ, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स है, डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, हेल्थ है, उसमें से उन्होंने डेवलपमेंट पर्पसेस को यहाँ से ओमिट करके उन्होंने कहा कि कोई भी एनपीओ बननी चाहिए जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि भाई बहुत सारी एनपीओ ऐसी बनती हैं कि जो डायरेक्टर्स को, जो ट्रस्टीज को फैसिलिटेट करने के लिए ही एक ट्रांजैक्शन को रूट करवाने के लिए बनाई जाती है, उसको अवॉइड करवाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक प्रोविजन जो है वो इंसर्ट किया कि जनरल पब्लिक वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे आपके पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान रेसिडेंटशिप ओनिंग कंपनी, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो सेक्शन 7A के थ्रू एक इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अगर आप एक ओनर है बीइंग रेसिडेंट, ठीक है, तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, वो इस सेक्शन के अंदर 7A के अंदर फाइनल टैक्स बना के इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह से जो प्रीवियसली एफपीसी के जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 15, 15A और 16 के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर आपके पास जो इंडिविजुअल और एओपी थे, ठीक है, बीइंग द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट दोज पीपल हु आर अर्निंग द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बेसिकली उनको डिडक्शंस जो है वो अलाउड नहीं होती थी। ठीक है, अलाउड इस तरह होती थी कि लास्ट फाइनेंस एक्ट के अंदर एक चेंज ये लेके आए थे कि भाई आपके पास अगर आपके पास ग्रॉस रेंट जो है वो 4 मिलियन से एक्सीड करता है और आप जो है वो जनरल रेट्स पे टैक्स देते हैं तो डिडक्शंस अलाउड होंगी।
इस मर्तबा इन्होंने ये 4 मिलियन वाला जो थ्रेशोल्ड है उसको एक यहाँ पे जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा था, इस वजह से इसको यहाँ से ओमिट कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इंडिविजुअल और जो एओपी है उनके रेट्स रिड्यूस्ड रेट्स ही हैं, तो इस केस की वजह से यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर आप जनरल रेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जनरल रेट्स कौन से, फर्स्ट शेड्यूल वाले जो सैलरी नॉन सैलरी के जो रेट्स हैं वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में वो रेट्स ऑब्वियसली उससे ज्यादा हैं कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट्स हैं रिड्यूस रेट से। तो एज ए रिजल्ट आपको जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन अलाउड हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं ये इसलिए भी कर रहे हैं कि अभी आगे जो है वो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन है और बहुत सारी कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर जिसका एंड है जून के अंदर, उसकी जो टैक्स प्रोविजंस की वर्किंग है, ठीक है, ऑब्वियसली रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन एक प्रोजेक्टेड अगर हम बात करें प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये चीजें अकाउंट फॉर की जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे एक और जो चेंज आया है वो सेक्शन 21 के अंदर आया है, इन एडमिसिबल डिडक्शंस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। जैसे सैलरी के लिए जो लिमिट थी पहले 15,000 थी, अब 25,000 कर दी है। इसी तरह से जो सिंगल अकाउंट हेड की लिमिट थी, ठीक है, 50,000 से वो 250,000 कर दी है, और अदर पेमेंट की लिमिट जो है वो 10,000 से 25,000 कर दी है। तो हमने कहा भाई ये एक बेसिकली एक चेंज है कि जो यहाँ पे आपके पास जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, यानी यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स को ऑब्वियसली एक इंक्रीज किया गया ताकि एक ब्रीथिंग स्पेस यहाँ पे भी क्रिएट हो। इसी तरह से अच्छा एक चेंज जो लाए गए हैं वो यूटिलिटी बिल्स के अंदर लाए गए हैं, ठीक है, कि भाई यूटिलिटी बिल्स इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड टू बी डिसअलाउड। लेकिन अब तक यहाँ पे कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं आया, क्लैरिफिकेशन नहीं आई, एक जेनरिक बात की है कि भाई अगर आपका यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड है, अब ये प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड क्या होगा इस पे क्लैरिफिकेशन आना जो है वो बाकी है। इसी तरह से एक और जो इंटरेस्टिंग चेंज आया है वो ये है कि जो सेल्स टैक्स के पर्सपेक्टिव के अंदर लेके आए कि एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स एट्रिब्यूटेबल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो उस केस में फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोज किया गया था कि भाई 20% मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो डिसअलाउ होंगी। जितनी भी टोटल डिडक्शन है उसका मैक्सिमम 20% वैसे तो आपका प्रोपोर्शनेट टू सेल्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 40% सेल्स हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो डिडक्शंस टू द एक्सटेंट ऑफ 40% डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन उसने कैपिंग कर दी, उसने कहा 40% डिसअलाउ नहीं होगी, मैक्सिमम अप टू 10% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी इस केस के अंदर। अच्छा, इसी तरह से एक और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस की कंप्यूटेशन करते वक्त जो टैक्स मैनेजर्स हैं और जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं, दे आर गोइंग टू कंसीडर दिस चेंज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज कि अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन अलाउंस की, ठीक है, तो प्रीवियसली होता था कि भाई फुल ईयर पॉलिसी थी कि जिस टैक्स ईयर के अंदर अगर आप एसेट लेते हैं उसमें पूरा आपको डेप्रिसिएशन मिलता था, जिस टैक्स ईयर में डिस्पोजल था उसमें कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई जितना आप जिस टैक्स ईयर में एक्विजिशन कर रहे हैं उस टैक्स ईयर में 50% आपको डेप्रिसिएशन जो है वो जितना भी बनता है उसका 50% आपको अलाउ होगा, और रिमेनिंग जो है वो 50% ये भी क्रिएट किया गया क्योंकि अगर आप 100% की डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि भाई आपके पास ज्यादा डेप्रिसिएशन की डिडक्शन हो रही थी तो कैश फ्लो के इश्यूज हो रहे थे गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा इसे डेफर करते हुए उस टैक्स ईयर में लेके जाया जाए कि जहां पे डिस्पोजल हो रहा है। इसी तरह से डिडक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ लीज रेंटल्स को यहाँ पे एक कैप दे दिया गया है। जैसे आपके पास अगर हम दूसरी जगहों पे भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर की हम बात करें तो 2.5 मिलियन तक का एक कैप दे दिया गया, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन ये प्रोविजन ऑब्वियसली जो भी प्रोविजंस की हम बात करें कि अनलेस स्पेसिफिकली रिटर्न, सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई करेंगे आपके 1 जुलाई ऑनवर्ड से। इसी तरह एक और बड़ा एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आया। जैसे लास्ट फाइनेंस एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को दो उसमें उन्होंने कैटेगराइज किया था, एक आपके ओपन प्लॉट्स के अंदर और एक आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। एक जगह पे उन्होंने ओपन प्लॉट्स के लिए मैक्सिमम जो होल्डिंग पीरियड दिया था वो 8 ईयर्स का दिया था, जिसके बाद जो है वो आपका कैपिटल गेन 0 चार्ज होता था। और इसी तरह अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए तो उसका 4 ईयर्स का लिमिट था। लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया है, ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब आपके पास सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, दोनों की जो लिमिट है, जो होल्डिंग पीरियड है, वो आपके पास 4 इयर्स का बेसिकली कर दिया गया है। उसमें अब उन्होंने बताया है कि अगर 1 साल से ज्यादा ना हो तो क्या होगा, 1 साल से ज्यादा हो और 2 साल से कम हो तो क्या होगा। तो उसमें 100%, 75% और ग्रेजुअली उसको डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर रखा है कि भाई अगर 4 ईयर से ज्यादा होगा तो फिर कोई भी आपका अगर डिस्पोजल आप करते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से एक लिटिगेशन वाले एस्पेक्ट से अगर बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आइडिया होगा इस चीज का कि शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, देखिए दो तरह के अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स की, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स थे वो सिक्योरिटी के अंदर सेक्शन 37A के अंदर फॉल कर रहे थे। तो अब उसने प्रॉब्लम ये था कि भाई लेट्स से एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, सब्सिक्वेंटली वो पब्लिक कंपनी बनी, तो मैं रेट्स कौन से लूं, मैं कौन सी चीज कंसिडर करूं, मैं उसको सिक्योरिटी कंसिडर करूं या उसको मैं नॉर्मल ट्रीटमेंट दूं जो एक शेयर का ट्रीटमेंट डिस्पोजल का होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया ताकि लिटिगेशन जो है वो कम हो यहाँ पे।
तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो लॉ ने एक चेंज लेके आया, वो चेंज ये था कि सिक्योरिटी कंसिडर किया जाएगा इफ सच पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच शेयर्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी में भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं, लेकिन जनरली लिस्टेड कंपनी की बात होती है। लेकिन मैंने यहाँ स्पेसिफिकली पब्लिक लिस्टेड लिखा है, लेकिन लॉ ने पब्लिक कंपनी का यहाँ पे वर्ड यूज किया, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अगर 50% ज्यादा की होल्डिंग हो आपकी फॉरेन गवर्नमेंट की, या 50% ज्यादा की गवर्नमेंट होल्डिंग हो, लेट्स से फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली आ रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लेट्स से के लॉसेस पर्टेनिंग टू द होटल बिजनेसेस, ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ रेसिडेंट कंपनीज के, जो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो टूरिज्म सेक्टर है, जो होटलिंग का सेक्टर है, वो पूरा सफर कर रहा है इस कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से, तो उनको एक एडवांटेज दिया गया है कि भाई आपका जो बिजनेस का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड 6 ईयर्स की बजाय आप 8 ईयर्स तक अब आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप रेसिडेंट कंपनीज हो engaged in the होटलिंग businesses basically। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो चेंज आया है कि प्रीवियसली हम जानते हैं कि सेक्शन 61 के अंदर दो तरह के आपके पास क्रेडिट्स हैं। एक जगह पे आपको डिडक्शन मिलती है, ठीक है, या एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम कह लें, ठीक है, जहाँ पे नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स उसने बताए हैं, और दूसरी जगह पे वो कहता है कि नहीं भाई अगर आप एक जनरल चैरिटी करते हैं अदर देन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट, तो आपको सेक्शन 61 के अंदर टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। अब वहाँ पे जो लिमिट थी इंडिविजुअल और एओपी के लिए लिमिट थी वो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम थी, और जो कंपनी के लिए लिमिट थी वो 20% थी। ये लिमिट अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज ये आया है कि अगर डोनर और डोनी का जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएट्स का रिलेशनशिप है, ठीक है, वो रिलेटेड पार्टी आरपी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है अगर एक दूसरे को, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली एक एक्सपेंस ले रहा होगा, दूसरा क्रेडिट ले रहा होगा, ठीक है, यानी मेरा एक्सपेंस ही है, लेकिन दूसरी तरफ जिसकी इनकम बन रही है वो भी जो है वो, अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो 100% टैक्स क्रेडिट है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई रिलेशनशिप है ट्रस्ट के अंदर और लेट से जिसको डोनेशन दिया जा रहा है, जो डोनेशन दे रहा है, तो उसमें उन्होंने लिमिट को कम कर दिया, हाफ कर दिया, यानी इंडिविजुअल और यूपी के केस में 15% अलाउ करेंगे और जो कंपनी है उस केस में 10% अलाउ करेंगे। अच्छा, इसी तरह से एक और आपके पास जो टैक्स क्रेडिट है वो इन्वेस्टमेंट का है, कि अगर आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जो है वो वहां पर आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर 20% और फिर सब्सिक्वेंट 2 इयर्स के अंदर 10%। लेकिन अब इसको लिमिट कर दिया गया, यहाँ टाइम बाउंड कर दिया गया कि मैक्सिमम ये क्रेडिट एप्लीकेबल होगा, जैसे हम जानते हैं 65B अब जो है वो क्रेडिट अब एंड हो गया है, ठीक है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, ठीक है। 65D और E की अगर हम बात करें तो वहां पे एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन इस केस के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस टैक्स क्रेडिट को लिमिट कर दिया गया 30 जून 2022 तक, ठीक है, यानी मैक्सिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं इस डेट तक, ठीक है, ऑब्वियसली अब ये हो सकता है कि 30 जून 2020 तक जाते जाते इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अभी अगर हम बात करें टू डेट की अगर हम बात करें तो ये थ्रेशोल्ड आपके, ये लिमिट आपके पास मैक्सिमम गिवन है। अच्छा, इसी तरह से एक और चेंज जो एनपीओस के लिए लाया गया, देखिए एक बात बड़ी जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद एनपीओस, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कंप्लाइंसेस एनपीओस के लिए बड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कि अगर आप फॉरेन फंड्स मंगवा रहे हैं तो उसको आपने इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाना जरूरी है, ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाएंगे आप, अदरवाइज वो आपके बैंक जो है उसको क्लियर नहीं कर रहा होगा, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के इश्यूज की वजह से। अब इसी तरह से एक और जो है वो रिक्वायरमेंट की गई है यहाँ पे, इम्पोज की गई है कि इफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू क्लेम अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 100%, ठीक है, देन इट हैज टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ वॉलंटरी डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन। बिकॉज यहाँ पे जो डोनेशन, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि ट्रस्ट के अंदर ऐसा होता है कि डोनर्स जो है वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, डोनेशन देते हैं लेकिन ये है कि वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होते। तो यहाँ पर उसने इस चीज को एम्फेसाइज किया है कि डोनर्स के नाम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं ये बात कि उसको सिंक करने के लिए कि भाई जो डोनेशन दे रहा है क्या वो खुद भी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, उसकी क्या जो है वो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है और उसको किस तरह से टैक्स नेट में लाना है, तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। अच्छा, फिर एक जो एसआरओ आया था अप्रैल के अंदर आपके पास, टैक्सेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द बिल्डर एंड डेवलपर्स, ठीक है, उसको आपने जो है वो लॉ का पार्ट बना दिया है, ठीक है, इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू 11th शेड्यूल के अंदर इंसर्ट करने के बाद इसको लॉ का पार्ट बना दिया गया। तो जो प्रोविजंस वहां पे एप्लीकेबल थे, लाइकवाइज यहाँ पे प्रोविजंस भी उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया एक शेड्यूल के थ्रू।
इसी तरह से सेक्शन 107 के अंदर एक चेंज लाया गया है कि पहले वहां पे प्रोविजन था जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का, अब स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का भी जो है वो प्रोविजन यहाँ इंसर्ट कर दिया गया है। ये दिस प्रोविजन इज इन द लाइट ऑफ द इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटीज दैट आर बीइंग साइंड बाय द कंट्रीज, ठीक है। उसमें जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल कंट्रीज हैं कि जिन्होंने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, इसी तरह से स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात भी की गई है। तो उसको यहाँ पे जो है वो लॉ का पार्ट बना दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेस्टिक लॉ इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ, तो उसको पार्ट बना दिया गया ताकि अगर स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना हो तो उसको भी यहाँ पे किया जा सके। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज जो इस फाइनेंस एक्ट के अंदर आया, जिसकी वजह से आपकी जो अपकमिंग लिटिगेशंस हैं, ठीक है, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 111 के अंदर एक बात लिखी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी अनएक्सप्लेन्ड सेल्स हैं, प्रोडक्शन की अमाउंट है, ठीक है, तो वो वहां पे ये बात लिखी थी कि एनी सच अमाउंट इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड एंड टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, वेयरएज कि ये जो अमाउंट्स हैं वो तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ही नहीं, ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो अब यहाँ पर जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आपके पास जो है वो इसको कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो अपेरेंटली नजर आता है कि वेदर द डिडक्शंस आर गोइंग टू बी अलाउड और नॉट, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो जो जब कमिश्नर जब ऑर्डर पास करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक जो कर रहे थे क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, तो उसमें वो कहते थे कि भाई नो डिडक्शन इज गोइंग टू बी अलाउड, ठीक है। तो अब इस चीज के ऊपर फर्दर जो है वो थोड़ा सा क्लैरिटी आना रहती है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेक्शन 113 की, तो मैंने वहां पे हम जानते हैं कि आपके पास रेजिडेंट कंपनी है, इंडिविजुअल था और एओपी था, ठीक है, 10 मिलियन की जो लिमिट्स गिवन थी टर्नओवर के ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने इसको एट पार लाने के लिए कि अगर पी ऑफ नॉन रेसिडेंट है तो उसको भी 113 के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। ऑब्वियसली वो भी कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है, तो उसके लिए भी आप जो है वो मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर को कंप्यूट करने के बाद कॉर्पोरेट रेट से कंपेयर करेंगे और विच एवर इज हायर की बेसिस के ऊपर टैक्स लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज कर रहे होंगे। इसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट चेंज इज रिगार्डिंग दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन। देखिए एक बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि ये कंसल्टेंट्स अगर यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स होंगे तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर नॉन रेसिडेंट अगर कंपनी हो तो जो सेक्शन 115 के अंदर एक बात लिखी थी कि इफ योर एंटायर इनकम फॉल्स अंडर द फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक है, तो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर हम साइमल्टेनियसली जाते हैं वहां पे कंपनी की डेफिनेशन रिटर्न 114 देखते हैं तो वहाँ कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी के अंदर देखते हैं तो फॉरेन कंपनी लिखा हुआ है, तो अब वो कंफ्यूजन थी कि भाई मैं रिटर्न फाइल करूं या मैं लेट से जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन फाइल करूं। तो इस कंफ्यूजन को जो इस लॉ के थ्रू जो है वो एक अमेंडमेंट के थ्रू, एक अच्छा अमेंडमेंट है, इसको फिर लिटिगेशंस को अवॉइड करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जो है वो रिमूव कर दिया गया है कि भाई आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है, और वो आपका रिटर्न ऑफ इनकम होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। इसी तरह जो जो जहां जहां स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन की बात लिखी थी उसको अपडेट कर दिया गया है और उसको वहां से ओमिट कर दिया गया है। अच्छा, एक बड़ा जो एक अच्छा चेंज कह लें आप इसे, या बिजनेस पर्सपेक्टिव में कह लें कि भाई टैक्स पेयर की प्रोफाइल को अब अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 114। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना फर्स्ट टाइम एनटीए लेने जाता हूँ तो मैं दूंगा, अपडेट करवाऊंगा। इसी तरह अगर मैं बिजनेस इनकम जनरेट करता हूँ तो मैं जो है वो अपडेट करवाऊंगा। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं अपडेट कराऊंगा, या फाइनल टैक्सेशन के अंदर फॉल करता हूँ। तो अब उसमें डिटेल्स क्या क्या चाहिए होंगी, उसमें आपकी यूटिलिटी बिल्स की डिटेल्स चाहिएंगी, उसमें आपकी बिजनेस प्रेमिसेस की डिटेल्स चाहिएंगी, मतलब सारी डिटेल्स। क्योंकि होता ये था कि जब मैं रजिस्टर हो रहा था तो उस वक्त की इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास होती थी और फिर उसके बाद कोई अपडेट्स ही नहीं होता था, ठीक है। तो अब अगर कोई चेंज आ गया एड्रेस के अंदर, बैंक अकाउंट्स के अंदर, यूटिलिटी कनेक्शंस के अंदर, तो वो सारी चीजें अकाउंट फॉर नहीं हो रही थी। इस वजह से इन्होंने इस सेक्शन को यहाँ पे इंसर्ट किया कि टैक्स पेयर की प्रोफाइल, तो अभी जो फर्स्ट कंप्लाइंस है आपकी अभी जो है वो सितंबर के बाद जो है वो डी हो जाएगी। तो ये एक और कंप्लाइंस है कि जिसके ऊपर जो है वो फॉलो करना इसे जरूरी है। अच्छा, फिर चेंज आएगा तो चेंज को भी इसके अंदर आप जो है वो मेंशन करेंगे और इसे रेगुलरली पीरियोडिकली जो है वो अपडेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के केस का एक चेंज लाया गया। जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल रिवीजन ऑफ रिटर्न की बात करें तो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज गिवन इन द लॉ फॉर रिवाइजिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन अगर हम बात करें रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट की तो इसे टाइम बाउंड कर दिया गया है कि भाई 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है वो उसके बाद यू कैन नॉट रिवाइज योर वेल्थ स्टेटमेंट। यानी मैक्सिमम टाइम पीरियड ये नहीं था, ये इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो रिवीजन ऑफ वेल्थ का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर दैट टैक्स ईयर है।
अच्छा, एक और बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज जो आया है वो है ऑटोमेटिक रिकम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल पैरामीटर्स। ठीक है, सेक्शन 120 के अंदर देखिए, जो यहाँ पे सीनियर प्रोफेशनल्स अटेंड कर रहे हैं वो इस बात को सेकंड करेंगे कि जो आपका 1979 का ऑर्डिनेंस था वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट स्कीम नहीं थी, लेकिन 2001 के थ्रू सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई रिटर्न फाइल करेगा टैक्स पेयर और उसे डीम्ड किया जाएगा एज इफ जो उसको कमिश्नर ने रिव्यू किया है। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें अमेंडमेंट्स की चांसेस थे, अमेंडमेंट्स हो सकती थी 122 के अंदर। और अब यहाँ पे इस चीज को स्टॉप किया गया है कि भाई 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है कमिश्नर को कि वो अगर चाहे तो अपेरेंट अगर कोई एरर है, अर्थमेटिकल एरर है किसी डिडक्शन के अंदर, किसी लॉस के अंदर, किसी टैक्स क्रेडिट के अंदर, तो वो उसको खुद से अमेंड कर सकता है। ठीक है, और फिर टैक्स पेयर जो वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा बेस्ड अपॉन दी रिकम्प्यूटेशन एज डन बाय दी जो भी रेलेवेंट जो कमिश्नर है उसके थ्रू। इसी तरह आपके पास एक और 122(5) के अंदर आपके पास जो एक चेंज आया है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। ये भी बहुत सारी चीजें जो है वो लिटिगेशन के अंदर थी कि वहां पे बात लिखी थी कि अमेंडमेंट होगी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑडिट और अदरवाइज। ठीक है, ये वर्ड लिखा था, अब उसको चेंज कर दिया गया कि चाहे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू आए चाहे ऑडिट के थ्रू आए, आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट 122 के अंदर पॉसिबल रहेगी। इसी तरह से आपकी जो अमेंडमेंट है, फर्दर अमेंडमेंट भी जो आपके पास हो सकती है, लेकिन टाइम पीरियड सेम है, 5 इयर्स का टाइम इनिशियल आपकी जो फर्स्ट अमेंडमेंट है और जो फर्दर अमेंडमेंट है उसके लिए एडिशनल 1 ईयर का जो टाइम पीरियड लॉ में पहले गिवन था अभी भी वो इंटैक्ट है। इसी तरह से आपके पास एक और जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है वो अग्रीड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर अपीरेंटली ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू लाइक increase the chances of like bribes and all those things। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये आई है, ऑल्दो इसमें जो है वो चांसेस इस चीज के कम है, ठीक है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अग्रीड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आया। अग्रीड असेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? और तो गवर्नमेंट ने इसमें प्रोटोकॉल्स लिए हैं, इसमें सेफगार्ड्स लगाए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अग्रीड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर शो कॉज नोटिस जो है वो आपको कमिश्नर इशू करता है तो उस शो कॉज नोटिस की बेसिस के ऊपर बिफोर द इशुएंस ऑफ द ऑर्डर, अगर आप जाते हैं कमेटी के पास, एक ओवरसाइट कमिटी बनाई गई है, उसके अंदर अगर आप जाते हैं और आप बताते हैं और वो दोनों आपस में अग्री कर लेते हैं म्यूचुअली कि भाई इतना अमाउंट पे होना चाहिए, इतनी लाइबिलिटी बननी चाहिए, तो फिर क्या होगा कि कमिश्नर ऑर्डर पास नहीं करेगा, उसी जो कमेटी है उसी की बेसिस के ऊपर आपका जो ऑर्डर है वो कंसिडर किया जाएगा, यानी अग्रीड है, म्यूचुअली अग्रीड हो जाएगा। चैलेंज कर सकते हैं, अपीलेबल रहेगा वो ऑर्डर, लेकिन एक अग्रीड असेसमेंट है, यानी ऑर्डर को अवॉइड करने के लिए शो कॉज नोटिस के बाद अगर आप जाते हैं उस कमेटी के पास तो एज ए रिजल्ट आप अग्रीड असेसमेंट भी करवा सकते हैं अपना, यानी दोनों बैठ के आपस में डिसाइड कर लें कि भाई कितना अमाउंट बनना चाहिए टैक्स का। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो प्रीवियसली आपके पास एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसे रिवैम्प किया गया है। जैसे एक चेंज की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो नॉमिनेशन बाय टैक्स पेयर का ऑप्शन था, पैनल जो एफबीआर बनाता था जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, ये सारे बिजनेस रेप्यूटेबल बिजनेसमैन होते थे, उसमें चेंज ये कर दिया गया कि भाई नाउ द एफबीआर हैज द राइट टू नॉमिनेट द पर्संस, और वो 1 से 2 कर दिए गए। ठीक है, एक होगा चीफ कमिश्नर होगा, पहले ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होता था, ठीक है, अब चीफ कमिश्नर होगा उस कमेटी के अंदर। ठीक है, एक सीनियर जो है वो कमेटी बनाई जाएगी और जो टैक्स पेयर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करेगा उसे भी एफबीआर ही सिलेक्ट करेगा, यानी टैक्स पेयर सिलेक्ट नहीं करेगा, उसे भी एफबीआर सिलेक्ट करेगा, लेकिन वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट जो है वो लोग होंगे, ऑल्दो दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड बाय द एफबीआर, लेकिन वो एक रेप्यूटेबल जो है वो लोग होंगे। इसी तरह से क्वार्टरली एडवांस टैक्स के लिए भी एक बड़ा मतलब जो चेंजेस आएंगे इस प्रोविजन की वजह से लिटिगेशंस बढ़ सकती हैं। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेक्शन 147 के अंदर तो आपकी जो एस्टिमेट्स थे, एस्टिमेट्स तो टैक्स पेयर खुद बताएगा। अब यहाँ पे भी कमिश्नर को एक राइट दे दिया गया है या एफबीआर को एक राइट दे दिया गया है कि वो अगर जो चाहें तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के थ्रू और एक प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर जो है वो आपको एडवांस टैक्स को कंप्यूट करवा सकते हैं। यानी अगर वो जैसे अब तक ये हो रहा था कि भाई आप अपना टर्नओवर खुद सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो सकता है कि भाई अब आप ना सेलेक्ट कर सकें, वो उसे ऑटोमेटिकली लास्ट टर्नओवर के थ्रू यहाँ पे जो है वो एस्टिमेट्स कर सकें। तो एक छोटा सा चेंज है जो लिटिगेशंस यहाँ पे करवा सकता है कुछ चीजों में। अच्छा, फिर द एडवांस टैक्स कलेक्शन ऑन इंपोर्ट स्टेज, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जो सेक्शन आपके पास जो क्लॉज 72B की बात करें अगर हम, तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल थी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, रॉ मटेरियल की अगर आप इंपोर्ट करते थे तो आपको वहां एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते थे। तो अब उस को जो है वो चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर जो है वो एडवांस टैक्स कलेक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड वो जो है वो एंड कर दी गई है।
और 3 कैटेगरीज बना दी गई है, एक कैपिटल गुड्स के लिए, एक रॉ मटेरियल्स के लिए और इनके अलावा जो गुड्स हैं उनके लिए, ठीक है। पहली कैटेगरी के अंदर जो गुड्स स्पेसिफाइड है 12th शेड्यूल के अंदर, उसमें 1% लगेगा इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पर 2% और फिर 5.5%। अब गवर्नमेंट इस कमेटी को एक बना रही है कि भाई अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री है या कोई एक ऐसा सेक्टर है कि जो समझता है कि नहीं भाई उसकी क्लासिफिकेशन सही नहीं हुई है, कैपिटल गुड्स में हो गई है या रॉ मटेरियल में होनी चाहिए थी या 5.5 में हुई है, तो ये 1 या 2% में होनी चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने कमेटी जो है वो बना रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि आप अपनी जो केसेस हैं उसको प्रेजेंट करते हुए चीजों को, जो आपके रेट्स हैं या आपकी जो क्लासिफिकेशन है उसको रिक्लासिफाई बेसिकली करवा सकते हैं। लेकिन एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हैव सम कैश फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, कि भाई यहाँ से जो है वो एग्जेम्पशन मिलती थी। अच्छा, अब एग्जेम्पशन में क्या होता था कि भाई कमिश्नर के पास जाएं, वो लिंगर ऑन होती थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्होंने किया है कि सबको स्ट्रीमलाइन, जैसे आपको याद होगा कि इससे पहले जो है वो 94 क्लॉज 94 के अंदर एक चेंज लाए थे सर्विस सेक्टर के अंदर, कि वहां की एग्जेम्पशन को एंड किया था और सबके लिए जो है वो जो स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं उसके लिए 3% का रेट लेके आए थे। पहले 2% अगर आप टैक्स पे करते थे तो आपको एग्जेम्पशन मिलती थी। यही काम इन्होंने इंपोर्ट स्टेज पे किया कि भाई एग्जेम्पशन की जो हैसल है इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा सबको एक पेज पे लेके आते हुए कि भाई 1%, 2% या 5.5%, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे अब आप जो है वो इंपोर्ट स्टेज की, अच्छा अब यहाँ पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, उन जो इंडस्ट्रीज हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम तो खैर यहाँ पे एक और, अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन के रूल्स के हवाले से बात करें तो आपका यही फाइनेंस एक्ट प्रिवेल करेगा, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि फर्स्ट उन्होंने जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर कंप्लीट टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज की थी क्लॉज जो 72B था उसके अंदर, अब जब 6 मंथ्स पास ऑन हो गए तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं भाई वो जो लाइबिलिटी पे की थी वो अब आपकी वेस्ट हो गई क्योंकि क्लॉज 72B जो है वो ओमिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ इस तरह की चीजें, लिटिगेशन वाली चीजें जो है वो नजर आ सकती हैं, क्योंकि मैं अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर टैक्स दे चुका हूँ पूरे साल का जो कि लॉ में लिखा था, तो अब या तो आप इसे फेज वाइज लेके आते, लेकिन आपने ऑल ऑफ अ सडन लाए, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी 1 जनवरी के से पहले जो है अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर चुकी है, ठीक है। इस साल के लिए फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें 2020 के लिए, अगर हम बात करें उनका टैक्स 2021 के लिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट थी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि टैक्स ऑन लोकल परचेज ऑफ कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल घी हैज चेंज फ्रॉम एफटीआर टू एनटीआर, ठीक है, छोटा सा चेंज है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आप फॉर एग्जांपल पेमेंट करते हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन किया गया है, एट पार लाया गया है कि जो आपकी जो रेसिडेंट की कंपनीज की टैक्सेशन थी उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है विद द नॉन रेसिडेंट के केस के अंदर। अगर पी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट है तो बहुत सारी जगहों पे उसको एफटीआर से एमटीआर किया गया, क्योंकि कंपनी के केस में अगर पाकिस्तान के लिए हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी वो सारी चीजें जो है वो एमटीआर एग्जिस्ट करती थी, तो इसलिए उसको स्ट्रीमलाइन, जैसे हमने 113 में देखा कि वहां पे भी जो है वो उसको जो है वो 113 में भी पी ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन को इंक्लूड किया गया है। लाइकवाइज अगर हम एक बात करें, एक और इंटरेस्टिंग जो चेंज आया है वो है टॉल मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग के केस के अंदर, तो आपके पास टॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जैसे प्रोविंस के अंदर और फेडरल के अंदर, प्रोविंस कहता है कि भाई ये सर्विस है और जो फेडरल है वो कहता है कि ये गुड्स है। तो एज अ रिजल्ट इंटरेस्टिंगली जो फेडरल ने काम किया हुआ था इससे पहले से सर्विस ही क्लासिफाई किया हुआ था, ठीक है। अब उन्होंने एक्सप्लिसिटली, क्योंकि अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लास्ट ईयर जो है वो फाइनेंस एक्ट के अंदर इस सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर एक चेंज लाए थे कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग को सेल्स टैक्स में इंक्लूड करवाया था कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इट्स नॉट लाइक रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब ये एक अलग डिस्प्यूट है, लेकिन फेडरल अपना स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है इस चीज के ऊपर कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसने सेल्स टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी इसको एट पार कर दिया है, ठीक है। यानी सर्विस वाला जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे उसने जो है वो डिस्करेज कर दिया है। इसी तरह से जो एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है लिस्टेड कंपनी के केस के लिए, कि अगर आपको 15 डेज के अंदर जो है वो एग्जेम्पशन मिल सकती है 153 की, ठीक है, अगर आपको ग्रांट नहीं की जा सकती तो उसको एज अ रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन जो है वो अवेलेबल होगी। अब इसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो डिफाइन होना बाकी है। लाइकवाइज यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड था, जैसे 153(7) के अंदर अगर हम देखें तो जो प्रेस्क्राइब पर्सन्स थे वहां पे लिमिट लिखी हुई थी 50 मिलियन की, उसको अब 100 मिलियन पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह जो सेक्शन 165 है उसमें फाइलिंग ऑफ दी विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो प्रीवियसली आपके पास जो है वो मंथली पे होती थी, फिर लास्ट ईयर इसे बायएनुअल किया गया, अब उसे फिर से जो है वो क्वार्टरली कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चेंज है, ये एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इस अभी क्या करें हम, ठीक है। तो जून के लिए तो वही चीज एप्लीकेबल है कि आपकी जो क्वार्टरली बायएनुअल स्टेटमेंट ड्यू है वो आप फाइल करेंगे, एनुअल स्टेटमेंट ड्यू है एम्प्लॉइज वाली वो फाइल करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर से जो होगा वो ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा, यानी सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो सितंबर के अंदर आप क्वार्टरली फाइल करेंगे, फिर बायएनुअल वाली चीज आपकी एंड हो जाएगी।
इसी तरह से अगर हम बात करें कि बैंक्स के लिए 500,000 की एक लिमिट थी कि आपने जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर उससे एक्सीड करता है अब उस लिमिट को जो है वो ओमिट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया कि अब कोई लिमिट नहीं है बेसिकली, ठीक है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट है तो वो आपने जो है वो विदाउट एनी लिमिट जो है वो भी अगर है तो वो भी आप जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो आप शेयर कर रहे होंगे। इसी तरह से इशुएंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड इनकम टैक्स रिफंड को अब एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है, लॉ का पार्ट बना दिया गया है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर्स जो है वो इशू किए गए थे, ठीक है, लेकिन यह है कि अब किस तरह से होता है प्रैक्टिकली इस चीज को आना बाकी है। लाइकवाइज गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन यहाँ पे इंसर्ट किया है कि रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड डेटा बेसिस बाय वेरियस एजेंसीज, ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं कि जो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन एफबीआर को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और डाटा को सिंक करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन, एक लॉ का, ऑब्वियसली देखिए उनकी भी रिलक्टेंस होगी इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे लॉ का पार्ट बना दिया गया है कि अब वो ऑफिशियली जो है वो उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो FIA हो, चाहे नादरा हो या XYZ कोई भी हो, उससे जो है वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट से जिनके नाम स्पेसिफाई भी किए हैं। अच्छा, कोविड-19 के सिचुएशन को कंसिडर करते हुए और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं उनको कंसिडर करते हुए एक और इंटरेस्टिंग चेंज जो आपका इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में और FED के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है रिगार्डिंग दी ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली, यानी वीडियो लिंक के थ्रू या किसी और प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं टैक्स पेयर्स हैं वो हेयरिंग्स पे नहीं जा रहे, वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई कोविड-19 की इश्यूज हैं या मतलब डिफरेंट इश्यूज दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो है वो ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि वीडियो लिंक के थ्रू या डिफरेंट मेथड्स के अंदर आपकी जो है वो हेयरिंग जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। इसी तरह से जो है वो सेक्टोरल बेंचमार्किंग रेशोज, जैसे हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी रेशोज दिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक रेशोज बनाया कि भाई एक बड़ा पॉपुलर CNG का जो केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर भी इस तरह की जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वाली बातें की गई हैं। इसी लाइट के अंदर जो है वो यहाँ पे सेक्टोरल जो बेंचमार्किंग रेशोज हैं उसको यहाँ पे किया गया कि भाई एक अगर एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर है तो उसको कितना जो है वो इनकम जो है वो ड्राइव कर सकता है पोटेंशियली वो, ठीक है, और कितनी उसने फिर जो है वो एक्चुअल में शो की है। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसको जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह से असेसमेंट ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है। ऑटोमेटेड केस सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो लेट से कि एक और चीज के ऊपर जो है वो बात की जा रही है कि लेट से अगर आप रावलपिंडी में बैठे हैं, ठीक है, तो आपका जो ऑडिट है, ठीक है, वो कराची के अंदर कोई कमिश्नर भी कर सकता है। ऑटोमेटेड सिस्टम को एक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि लाइक वहां पे आपके पास शायद जिसका ऑडिट हो रहा है और ऑब्वियसली द वन जिसके अकाउंट्स ऑडिट किए जा रहे हैं वो फिर आपस में शायद कनेक्टेड इस केस में ना हो, ठीक है। प्रोसीजर डिफाइन होना बाकी है, लॉ के अंदर प्रोविजन आ चुका है कि ऑटोमेटेड केस सिलेक्शन सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, फिर कुछ डेवलपमेंट्स किए कि भाई अगर मोटर व्हीकल की डेफिनेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की कलेक्शन की, तो उसमें जो ऑटो रिक्शाज हैं उसको या 200 सीसी से ज़्यादा की इंजन कैपेसिटी वाली जो मोटर व्हीकल्स हैं अगर एक्सीड नहीं करती तो उन्हें एक बेनिफिट दिया गया कि एडवांस टैक्स उनके ऊपर चार्ज नहीं होगा। इसी तरह एक पुराना एक SRO था इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि अगर आपका जो है वो एडवांस टैक्स डिस्चार्ज है, लाइबिलिटी डिस्चार्ज है, तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी ऑन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कनेक्शन, ठीक है, यानी जो टैक्स कलेक्ट होता है इनकम टैक्स वो पे कलेक्ट नहीं होगा। अब उसका प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या है कि वो अभी IRS के ऊपर किस तरह से लेके चलेंगे वो स्पेसिफाई होगा। इसी तरह से आपके पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर हम बात करें वहां पे 200,000 की एक लिमिट थी, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड था कि अगर उससे एक्सीड करती थी आपकी एजुकेशनल फीस तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट होता था। अब यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर्स को एडवांटेज दिया गया है कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर क्लासिफाई हो रहे हैं तो फिर आपके पास कोई भी अमाउंट जो है वो यहाँ पर जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा, एडवांस टैक्स कोई भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से एक जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड्स के अंदर भी बात डिस्कस की कि अगर हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स की, ठीक है, कुछ 9 विदहोल्डिंग टैक्स हैं जिसमें अगर आप एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर अमाउंट रेमिट करते हैं या फंक्शंस और गैदरिंग की बात करते हैं 236D की बात करते हैं तो 9, इसी तरह इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं 236U की, तो बहुत सारी इसमें जो है वो विदहोल्डिंग्स और एडवांस टैक्स कलेक्शंस हैं कि जिसको अब जो है वो एंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स से पर्टेनिंग जो है वो डेवलपमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस दी सेल्स टैक्स हाइलाइट्स के जो इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू और उसके जो इम्पैक्ट्स भी हम साथ साथ जो डिस्कस कर रहे हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर एक्टिव टैक्स पेयर का सेल्स टैक्स के अंदर सेक्शन 2 के अंदर जो एक डेफिनेशन गिवन थी उसमें जो आपकी डी रजिस्ट्रेशन सॉरी ब्लैक लिस्टेड जो पर्सन्स थे, ठीक है, सस्पेंडेड पर्सन्स थे, वहां पे उसके साथ साथ जो है वो ब्लॉक्ड पर्सन का भी लिखा हुआ था, लेकिन ब्लॉक्ड कोई ब्लॉकिंग ऑफ रिफंड्स का कोई कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ रिफंड्स को हटा दिया गया है और इंक्लूड कर दिया गया है जैसे वहां मंथली विदहोल्डिंग टैक्स का लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जगह उन्होंने चेंज करके इसे क्वार्टरली विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को, ठीक है, तो उसमें है फॉर एग्जांपल अगर आपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी जो है वो इस विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फाइल नहीं की, फॉर एग्जांपल आप जो है वो ब्लैक लिस्टेड पर्सन है, सस्पेंडेड पर्सन है, तो आप एक्टिव टैक्स पर नहीं है फॉर सेल्स टैक्स पर्पसेस, तो उस डेफिनेशन के अंदर जो है वो ये बेसिक चेंजेस जो है वो लाई गई हैं। इसी तरह से आउटपुट टैक्स के अंदर भी एक छोटा सा चेंज है, जैसे वहां पे सेल सप्लाईज मेड टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को जो है एक्सप्लिसिटली इंक्लूड कर दिया गया, जैसे इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में अलग से दिया गया, इसी तरह से आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। लाइकवाइज कि अब उसने जो वेस्टेज है, जैसे इनपुट टैक्स के अंदर कितना आपका जो है वो वेस्टेज अलाउड होगा, ठीक है, तो एक जेनरिक प्रोविजन इंसर्ट किया गया कि एफबीआर के पास पावर है कि वो चाहे तो रिस्ट्रिक्शन ऑन वेस्टेज ऑफ मटेरियल के ऊपर भी थोड़ी सी यहाँ पे आपको जो चीजें वो इशू कर सकता है कि भाई कितना वेस्टेज जो है वो आपको अलाउ होगा ताकि ज्यादा इनपुट इसके ऊपर क्लेम ना किया जा सके। लाइकवाइज एज वी ऑल नो कि इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविजन है 124 वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सारी की सारी जो लेट्स से कि वहां पे एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई हाई कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन आता है तो कमिश्नर या ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू हैज टू फॉलो द डिसीजन अंटिल मॉडिफाइड सब्सिक्वेंटली। उसी चीज को यहाँ पे जो है वो रिट्रेट किया गया, एफईडी में भी लेके आए और सेल्स टैक्स में भी उस कॉन्सेप्ट को जो है वो लेके आए कि भाई अगर हाई कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का कोई किसी मैटर के ऊपर डिसीजन है तो वो जो है वो पेंडिंग असेसमेंट्स के अंदर उसको फॉलो किया जाएगा, अनलेस कि वो सब्सिक्वेंटली अगर मॉडिफाई हो जाता है तो फिर उस केस में वो मॉडिफिकेशन अप्लाई कर रही होगी। अच्छा, एक और जो इंडस्ट्री रेलेवेंट और जो बिजनेसमैन रेलेवेंट एक जो रिटेलर्स थे बेसिकली कि भाई सीएनआईसी की कलेक्शन की जो बात थी और उसमें रिटेलर्स को एक्सक्लूजन दी गई थी, उसमें 50,000 से ज्यादा का अगर थ्रेशोल्ड था तो सीएनआईसी कलेक्ट करना था, जो रिटेलर्स थे, मॉल्स थे और डिफरेंट लोग थे। अब उस 50,000 की लिमिट को इनहांस करके 100,000 कर दिया गया है, ठीक है, यानी आप रिटेलर्स अगर हैं तो 100,000 तक अगर आपके पास कोई आता है और शॉपिंग करता है तो उस पर आप नहीं लेंगे, उसके बियॉन्ड अगर है तो फिर आपको कलेक्ट करना होगा। लाइकवाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट एक जनरल प्रोविजन है जो इनकम टैक्स में पहले ही एग्जिस्ट करता था, सेल्स टैक्स के अंदर इसे इनकॉर्पोरेट किया गया कि भाई अगर एफबीआर या उसके जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं वो एक्सेस करना चाहें रिकॉर्ड्स को, क्योंकि एक आर्गुमेंट दिया जाता था कि भाई प्रोविजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको किस तरह से आप एक्सेस करें, तो इस वजह से इस प्रोविजन को भी इंसर्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट जो है वो टैक्स पे लायबल है कि एफबीआर को प्रोवाइड करें, ठीक है, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोवाइड करें। Another important development of sales tax is कि authorized officers are empowered to real-time electronic access to records. Again, हमने कहा कि भाई जैसे हमने देखा था integrated enterprise का जो concept था, ठीक है, तो वो जो devices के जो data आएगा या इसके अलावा कोई data है तो उसके ऊपर real-time access का यहाँ पे जो है वो provision insert किया गया है। अच्छा, एक और litigation के perspective में एक और जो development हुई है that pertains to the commissioner appeals की एक प्रोविजन है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आता हूं और मैं जो है वो कमिश्नर अपील्स के पास प्रेजेंट करता हूं जबकि मैंने इससे प्रायर स्टेज के ऊपर असेसमेंट के स्टेज के ऊपर ऑफिसर या कमिश्नर को नहीं दिया है, तो जनरली अब तक ये होता था कि वो एंटरटेन करता था कि भाई अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जो कि आप सब्सिक्वेंट स्टेज पे दे रहे हैं लेकिन आपने उनको नहीं दी थी तो वो एक्सेप्टेबल की जाती थी, लॉ में उसका कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने एक और इंसर्शन की है कि भाई अगर आपने पहले कोई चीज नहीं दी है तो अभी भी लेटर स्टेज के ऊपर अगर आपने अपने ऑफिसर को या कमिश्नर को कोई डाटा नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया, तो सब्सिक्वेंट स्टेज के ऊपर भी आप नहीं दे सकेंगे। हाँ, अगर लेट्स से कि उसने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी प्रेजेंट करने की या लेट्स से उसने आपसे मांगा ही नहीं था कोई चीज, तो उस केस में आपका राइट है कि कमिश्नर अपील्स के पास आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यू वोंट बी हैविंग अ राइट टू प्रेजेंट सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस टू द कमिश्नर अपील्स। इसी तरह से जैसे एडीआरसी के कॉन्सेप्ट को इनकम टैक्स में रिवैम्प किया गया है, लाइकवाइज जो हमने बात की चीफ कमिश्नर की बात की या जो हमने बात की वहाँ पे जो नॉमिनेशंस की बात की कि एफबीआर नॉमिनेट करेगा, 2 नॉमिनेशंस होंगी जो फिर 75 डेज वाली जो लिमिट थी, तो ये रिवैम्प कर दिया गया है आपका इनकम टैक्स में भी, सेल्स टैक्स में भी और एफईडी के अंदर भी,
ठीक है। और फिर जैसे कि हमने इनकम टैक्स में डिस्कस किया कि देयर विल बी अ रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस बाय द बोर्ड बाय द एफपीआर, तो यहाँ पे भी इस प्रोविजन को रेप्लिकेट किया गया है। देखिए कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो इनकम टैक्स के अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर और जो एफईडी है उसमें साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ऐसा होता था कि कोई प्रोविजन, जैसे रिविजन ऑफ रिटर्न की हम बात करें, तो रिविजन ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट पहले इनकम टैक्स में आया, फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो लेजिस्लेशन के अंदर जो है उसको लेके आया सेल्स टैक्स में भी। लेकिन इस मर्तबा कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो साइमल्टेनियसली सारे एक्ट्स के अंदर जो है वो की गई है। अच्छा, अब अगर हम एफईडी से पर्टेनिंग कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे भी उसने जैसे सेल्स टैक्स में वेस्टेज के लिए अगर हम बात करें तो उसकी रिस्ट्रिक्शन की बात की है, तो यहाँ पे भी एक जेनरिक बात की है कि अगर वेस्टेज ऑफ मटेरियल, तो एफबीआर के पास पावर है कि किस एक्सटेंट तक वो आपको इनपुट टैक्स जो एफईडी, जो वैट मोड और नॉन वैट मोड की जो बात है, तो जो वैट मोड से पर्टेन करता है उसमें किस एक्सटेंट तक आपको एफईडी का क्लेम जो है वो अलाउ किया जाएगा। लाइकवाइज अगर हम बात करें पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटी, जैसे एज बी डिस्कस्ड इन अंडर द सेल्स टैक्स, कि भाई वहां पे भी जो इनकम टैक्स का प्रोविजन था कि अगर कोई डिसीजन आपके पास नहीं है और उसकी सेटलमेंट या उसकी जो प्रीसिडेंस आपके पास अवेलेबल है हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल लेवल के ऊपर, तो सेम डिसीजन हैज टू बी फॉलोड बाय द कमिश्नर और ऑफिसर। तो यही कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स में तो था, सेल्स टैक्स में भी लेके आ गए हैं, और आपके पास जो एफईडी है वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को जो है वो लेके आ गए। इसी तरह से स्कोप फॉर सीजर ऑफ गुड्स एंड कॉन्फिस्केशन इनहैंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो गुड्स हैं, ठीक है, आपके पास जैसे कुछ गुड्स स्पेसिफाइड थे, अब उसके अंदर उन्होंने स्कोप को एनहांस किया है कि भाई फॉर एग्जांपल पहले इनिशियल लेवल के ऊपर आपके पास जो गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता था, ठीक है, अब उसके राइट को जो है वो एफबीआर ने अपने आप को पावर को एनहांस करने के लिए, एम्पावर करने के लिए और ज्यादा बढ़ाया है। Likewise, Commissioner Appeal is empowered to admit any evidence in appeal if not already produced। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि अगर हम कमिश्नर अपील्स की बात करते हैं तो ये उस केस में होगा कि जब आपसे इनिशियल लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रेजेंट करने का चांस नहीं दिया गया, लेकिन अगर आपसे मांगी गई, ठीक है, और आपने प्रेजेंट नहीं की, तो फिर कमिश्नर अपील्स के पास पावर नहीं होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स को आपसे ले सके। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर, जैसे ट्रिब्यूनल लेवल की हम बात करें, एक बड़ा एक सेट प्रेसिडेंस है कि भाई जब आप कमिश्नर अपील्स को या हाई कोर्ट डायरेक्ट चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट भी कहता है कि भाई पहले आप एक लेवल्स को फॉलो करते हुए आए, फिर आप जो है वो हाई कोर्ट में आए, ठीक है, अनलेस कोई एक्सेप्शनल मैटर हो। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी इस चीज को प्रिवेल करवाने के लिए कि भाई एक अथॉरिटी के पास अगर आप जा रहे हैं, तो पिछली अथॉरिटी को आपने अगर डाटा प्रेजेंट किया है, जिसका राइट था, बेसिक राइट तो कमिश्नर का था, वहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपने प्रेजेंट करने थे, अगर आपने वहां प्रेजेंट किए तो फेयर इनफ, अगर आपने नहीं किए तो कमिश्नर अपील्स के पास अब आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, प्रोवाइडेड कि आपको चांस ही नहीं दिया गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही नहीं दी गई उस जो डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से जो एडीआरसी के प्रोविजंस हैं उसको अगेन जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अंदर जिस तरह से अलाइन किया गया, स्ट्रीमलाइन किया गया, वैसे ही एफईडी के अंदर भी जो है वो आपकी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया, जो अभी हमने जैसे बात भी की कि एडीआरसी के अंदर जो चेंजेस लेके आए। और फिर इसी तरह से कि एफबीआर के पास जैसे इनकम टैक्स के अंदर पावर है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट के लिए, ठीक है, इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर जैसे पावर है, इसी तरह से एफईडी के अंदर भी एक जो इंसर्शन की गई है कि एफबीआर हैज गॉट द पावर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी टैक्स पेयर फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंट, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव गॉट द डिफाइंड टाइम कि जिसके अंदर शकूर भाई ने कहा है कि हमें जो है वो सारी चीजों को वाइंड अप करना है। तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑफ द फाइनेंस एक्ट, और उसी से पर्टेनिंग जो हमने इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट की जो हमने बात की, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास स्टिल अगर किसी की हेलो मुजम्मिल ब्रो, आपकी आवाज़ बंद हो गई है। कैन यू हियर मी? मुजम्मिल साहब, कैन यू हियर मी? मुजम्मिल साहब, मिस्टर मुजम्मिल, कैन यू हियर मी? ओके, आई बिलीव कोई कनेक्शन इशू है। लेट मी टेक्स्ट दैट जस्ट कांट बी रीजॉइन। ओके, Mr. Muzammil has joined again.
So Muzammil sir, can you hear me? Just a moment. So ask to unmute. Kindly unmute Muzammil sir. Yes. So so you can hear me? Yes, yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Obviously, I you have are some well aware questions as about well. the situations that are prevailing in Karachi. Yes, yes. So we may have a question answer session. First question that I was having, what would be the impact of revision of wealth statement by commissioner now instead of taxpayer? We have a question from Mr. Zishan Iqbal. What would be the impact of revision of wealth statement by commissioner now instead of taxpayer? Uh, Revision of wealth statement, right? You're talking about the revision of wealth statement? Yes. What would be the impact of revision of wealth statement by commissioner now instead of taxpayer? Yes. ये नो question. देखिए यहाँ पर जो चेंज आया है वो बेसिकली यहाँ पे एक जो रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट के केस में चेंज आया है वो आपके पास जो चेंज है वो टैक्स पेयर के रिवीजन के हवाले से कि टैक्स पेयर कैन रिवाइज हिज वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है। और उस केस के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाए, अगर कमिश्नर समझता है फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी रॉन्ग स्टेटमेंट और ओमिशन, ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर आपके पास उस जो रिवीजन है उसको डिनाइल भी किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो चेंजेस हैं वो टैक्स पेयर खुद रिवाइज करेगा, नॉट द कमिश्नर। Okay, thank you very much. So anyone can ask the question. I will allow to speak. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकता है या क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिख सकता है, सो ताकि हम उसको आंसर कर सकें। सो काशिफ अहमद सदीकी साहब ने taxpayer profile update is to be done by everyone at what intervals even if there is no change? नहीं, if there is no change then the taxpayer is not required to update the his profile. लेकिन अगर चेंज आता है तो फिर ऑब्वियसली उस केस के अंदर उसको अपनी प्रोफाइल को चेंज अपडेट करना होगा। 90 डेज के अंदर आपने अपनी प्रोफाइल को जो है वो अपडेट करना है। काशिफ साहब ने कहा है काइंडली डिफाइन द एडीआर अ लिटिल मोर, थैंक्स। अच्छा, ये एडीआर को उन्होंने कहा है कि थोड़ा डिफाइन कर दें। सो आई बिलीव मुज़म्मिल साहब अगर आप इसमें कुछ थोड़ी सी डिस्कशन कर सकें। देखिए इसमें बेसिकली देखें एडीआरसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल इफ द टैक्स पेयर फेसेस द हार्डशिप और डिस्प्यूट, ठीक है, अदर देन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उस केस के अंदर आपके पास एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि टैक्स पेयर को कि भाई वो आपके पास एडीआरसी के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर एफबीआर के पास जाएगा तो एफबीआर इज गोइंग टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ठीक है। अब उस कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो एफबीआर के पास ही पावर है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज आया है वो चेंज ये आया है कि आपकी जो कमेटी फॉर्म की जा रही थी वो फॉर्म की जा रही थी, एक ऑफिसर उसमें उस कमेटी का पार्ट था, एक जो टैक्स पेयर है वो नॉमिनेट करता था फ्रॉम द पैनल ऑफ द एफबीआर, ठीक है, कि एक रेप्यूटेबल बिजनेसमैन होता था, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता था। नाउ दिस प्रोविजन हैज चेंज, ठीक है। और इस केस के अंदर यहाँ पर जो चेंज बेसिकली लेके आए वो ये लेके आए कि आपके पास जो है वो एफबीआर के पास ही पावर है, वो पर्सन जो है वो नॉमिनेट करेगा इंस्टेड ऑफ द टैक्स पेयर सेलेक्टिंग द पर्संस फ्रॉम द पैनल, ठीक है। तो ये बेसिक आपके पास जो चेंज है वो आए। थैंक यू। दूसरा एक क्वेश्चन है, कैन एनीवन हु मिस्टेकनली फॉरगॉटन प्रीवियस रिटर्न दैट इज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 2019 टू सबमिट हिज और हर इनकम टैक्स रिटर्न? Question, can anyone who mistakenly forgotten previous year return for the year 2019 to submit his income tax return? I believe the question is, what would be the consequence in case of a breach occurred? Sorry, I can't hear you. Yes, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन है कि ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने 2019 की रिटर्न फाइल नहीं की तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हाँ, कोई इशू नहीं है। आप जो है वो उसमें अगर आप एटीएल में अभी भी आना चाहते हैं तो उसमें पेनल्टी गिवन है कि अगर इंडिविजुअल है तो 1000 रुपीज की पेनल्टी पे करें। आज भी अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएंगे। Okay, next question है from Tayyib Mahmood. Do sales tax will be applicable on industrial developed plots developed by public sector company with 100% government shares? ये क्वेश्चन है, do sale tax will be applicable on industrial developed plots developed by public sector company with 100% government share? ये क्वेश्चन है एक मुज़म्मिल साहब।
Okay, okay. Sorry, Shakur Saab, I can't hear you. Basically, there are some issues over here. Oh, no I think worries, no worries, no worries. we This can is just last. continue. You can just share my email address and cell number. I can Yes, just yes, respond to the individual queries later on. yes, yes. Thank you very much, Muzammal Saab, for your time, for a very detailed and insightful presentation. So now we have Mr. Jawad Salim. He is a CFO and non-executive director for many different companies. So he is also branch ambassador for Lahore branch, IFA Lahore branch. I would like to request Mr. Jawad Salim to please present concluding remarks. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much, Abdul, for arranging this wonderful session. I also want to thank Mr. Muzammil for this much of insight. Uh, we are pretty much convinced that you are a subject matter expert, and we enjoyed every bit of it. And I'm pretty sure that in time to come, you will be having multiple queries. As I can see, multiple questions still unanswered down there, so we will be bugging you down through your email ID as well. And with respect to our members, I must say that you must be utilizing all such opportunities. मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों सबसे रहेगी with respect to the fact that कि आप लोग WhatsApp ग्रुप में भी अपने आप को बड़ा एक्टिव रखिए in terms of queries relating to not only taxation but rest of the other things. आप जो भी business related मसाइल हैं या आपके profession related issues हैं तो उनको discuss करें वहाँ पे. और आई थिंक अब्दुल भी मुझसे एग्री करेंगे और आज हम सब जो मेंबर्स इस तरह अटेंड कर रहे हैं इसको लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि नेक्स्ट ईयर बजट में आईएफए की तरफ से सेपरेट हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे आईएफए के प्लेटफॉर्म से और आई माई सेल्फ टेक इट ऑन मी और आई वुड सजेस्ट ऑल मेंबर्स टू पार्टिसिपेट एज वेल और ये आप सबकी ही कलेक्टिव एफर्ट से ही हो सकेगा बिकॉज डिफरेंट इंडस्ट्री से आप लोग बिलोंग करते हैं और अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम उसके अगेंस्ट अपनी रिकमेंडेशन दे सकेंगे लाइक हमारे डिफरेंट अदर ब्रांच एम्बेसडर्स भी हैं इन डिफरेंट सिटीज के अंदर तो आई वुड रिक्वेस्ट देम एज वेल और आई थिंक विद दिस आई विल कंक्लूड एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड इट्स वेरी इंसाइटफुल थैंक यू थैंक यू वेरी मच आई डोंट नो कि आप लोग जो है वो अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ऑन योर कैमरा सो दैट वी कैन क्लैप फॉर मिस्टर हिमानी I don't know you can on your cameras or not so this is from our two side so thank you Muzammal Saab thank you very much for your time for your presentation and thank you very much for each and every participant who have spared your valuable time for this session so thank you very much thank you Jawad Saab thank you Muzammal Saab thank you take care love it thank you